Good morning, students. I'm Jyoti, your maths teacher. I hope you all find safe at your home, beta. I think आपने जो अपने previous topics हैं वो बहुत अच्छे से clear किए होंगे. तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक है एंड नया चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं. उसका नेम है हमारा डाटा हैंडलिंग. मीन्स अगर इसकी नाम के अकॉर्डिंग चलें कि डाटा हैंडलिंग मीन्स डाटा को हैंडल करना. अब फर्स्ट जो हमारा वर्ड है डाटा, हम डाटा को पूछेंगे कि डाटा क्या होता है. व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? आपके पास मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, मेरे पास में कितना रिकॉर्ड है 30 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है. इट मीन्स मेरे पास कितना डाटा है, 30 स्टूडेंट्स का डाटा है. इट मीन्स उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी वो सारी क्या हो जाएंगी, हमारी डाटा हो जाएंगी. ठीक है, तो डाटा का मतलब ही है हमारे पास में कि जितना कलेक्शन है हमारे इंफॉर्मेशन का, जितना रिकॉर्ड है वो सारा क्या है, हमारा डाटा है. हैंडलिंग मीन्स उसको हम सामने वाले को एक्सप्रेस कैसे करें, कि हम कितना उसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें, उसको एक रिसर्च कर ले, अरेंज कर ले, किस फॉर्म में उनको अरेंज करें कि सामने वाले को प्रॉपर इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में मिल सके. Consider a basket containing 17 fruits. To know the exact number of each particular fruit in the basket, you classify the fruits into categories. Now, to find out the number of fruits belonging to each category, an easy method followed is the use of tally marks. They keep track of numbers in groups of 5. One vertical line, count 1. 2 vertical lines, count 2. 3 vertical lines, count 3. 4 vertical lines, count 4. And the diagonal line across the 4 vertical lines, count 5. Let the first fruit picked be an apple. So we make one vertical line against the category of apple in the table. Consider that the second fruit picked is a banana. So we make one vertical line against banana. Let the third fruit picked be again an apple. So we make one more vertical line in the category of apple. Similarly, we pick all the fruits one by one and put the tally marks in the respective places in the table. Tally marks help to avoid missing an item or counting one item more than once. The number of times a particular item occurs in a given data is known as the frequency of that particular item. Thus, frequency of apple is 5, frequency of banana is 6, frequency of orange is 2, frequency of mango is 1, and the frequency of sapota is 3. The table so obtained is known as the frequency distribution table. Suppose the heights of 15 students in the class are as follows. To read and understand the given data easily, you can break it into groups. For this, locate the minimum and maximum heights. They are 150 centimeters and 172 centimeters respectively. To include all the observations in the groups, you make the various groups with equal intervals. Such groupings are called continuous class intervals or classes. This is because in any two consecutive class intervals, the lowest number of the succeeding class is equal to the greatest number of the preceding class. The size of each class interval is called as class size or class width. Here you can see that the class size of each class interval is 4. The lowest number in each class interval is known as its lower class limit, and the greatest number in each class interval is known as its upper class limit.
Now, you might be thinking that 154 is appearing in both the first and in the second interval. In which class interval should it be considered? If it's considered in both the classes, then it's counted twice. To avoid such repetition, we consider 154 in the interval 154 to 158. And it's not included in the interval 150 to 154. We can generalize that each class interval represents the height greater than or equal to the lower class limit and less than the upper class limit. Now, complete the frequency distribution table by using tally marks and mentioning the number represented by tally marks in the frequency column. Frequency distribution table thus simplifies and condenses the data and enables us to observe certain important features at a glance. हाँ जी बेटा जी, तो अब हमें एक एग्जांपल दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। इसमें हमें अनअरेंज्ड डाटा दिया गया है, मतलब बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ग्रेड दी गई है स्टूडेंट्स की मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसमें क्या दिया गया है, हमें बहुत सा अनअरेंज्ड, मतलब कोई और ऑर्डर नहीं दे रखा है, कोई ग्रुपिंग नहीं बना रखी है, सिर्फ हमें एक अनअरेंज्ड ऑर्डर दे दिया है। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंफर्टेबल जोन के लिए इनको अरेंजमेंट में लेके आना है। असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर सकते हो, और उसके बाद में आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी है किस स्टूडेंट की। जैसे कि ये बताया गया है 9 ग्रेड जो है उसकी टैली मार्किंग कितनी है, 4 है। इसका मतलब कि 9 ग्रेड कितने बच्चों को मिली है, 4 को मिली है। ऐसे ही 8 ग्रेड कितनों को मिली है, 4 को मिली है। इस तरह से बताया गया है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बता दिए हैं कि 32 कितने हैं, 32 हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है बेटा, ये आपकी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब हम आगे भी एक और एग्जांपल आएगा जिसमें हम इंटरवल्स की बात करेंगे। अभी इंटरवल्स नहीं है, अभी इंटरवल्स आ रहे हैं। इंटरवल की बात करते हैं तो हमें क्या है, एक क्लास का इंटरवल दिया जाएगा, ठीक है। क्लास इंटरवल लेंगे हम लोग। इसमें क्या है, हमें स्कोर दिए गए हैं 30 स्टूडेंट्स के, ठीक है। और मार्किंग के जो स्कोर है उसकी इंटरवल बना लिया कि 0 से 20 मार्क्स कितनों के हैं, 20 से 40 कितनों के हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बताई गई है कि 0 से लेकर 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 7 के हैं। इस तरह से 20 से 40 6 के हैं। इस तरह से आपको ये टेबल बताई गई है, हमने ये टेबल बना ली है। फिर हमें रेंज भी बता सकते हैं कि रेंज क्या होगी इस टेबल की। तो रेंज का मतलब होता है जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उनका सब्ट्रैक्शन, वो हमारी रेंज होती है। तो इसमें हाईएस्ट हमारी है कितनी है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 98 और मिनिमम वैल्यू है हमारी 3। तो रेंज हमारी कितनी होगी, 95, यानी कि मार्क्स को लिया गया है। हाईएस्ट मार्क्स ले लिया और लोवेस्ट मार्क्स ले लिया और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या कर दिया है, उनकी रेंज फाइंड आउट कर ली है बेटा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं, पहले भी दिखाए गए हैं, अब भी दिखाया गया है। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन हैं, आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बेटा।